Okay, this video might be boring to a lot of people. I know that. I know that already. But I was kind of reading it, and I don't want to read alone because I always need someone to explain it to. So I thought, why not explaining it to you guys? अगर किसी को interest होगा तो वो देख लेगा, जिसको नहीं होगा तो ठीक है, वो तो क्यों देगा. So hey guys, welcome back to my channel. My name is Parthvi. I'm a dietitian, but I love biology. So in this video, we are going to talk a lot about biology. See, biology was kind of like my first love. It's like I sometimes study it randomly. Actually, I was reading something, so I thought, why not teach it as well? Because I love teaching too. So I love teaching, I love biology. So hence the video. Now, I have never tried doing like making videos like this, like reading and studying and explaining at the same time. But someday has to be your first day, right? So let's start. So I was reading this text about cell, structure of cell. I studied it in 11th standard, I guess, in detail, and I used to love that unit. So today we'll study everything about cell. Cell, the unit of life, its structure, cell theory, its discovery, and everything. Okay. So if you're a biology student studying for NEET or anything, stay with me. I don't know if it is boring for me to read it and then explain it, but again, someday is going to be your first day. Okay, it says you must be aware of the fact that cell is the basic unit of life. Now why we are calling cell as the basic unit of life, right? Like हम किसी और चीज को भी तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, हम सेल को ही क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं? एंड सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कह रहे हैं लोग. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. उससे कम ऑर्गेनल्स भी होते हैं, उससे नीचे लाइक टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं एंड और भी चीज़ें होती हैं. बट हम सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं बिकॉज सेल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अकेले फंक्शन कर सकता है. लाइक अगर एक यूनिट के फॉर्म में कोई चीज़ अकेले फंक्शन कर सकती है तो वो एक सिंगल सेल ही है. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल लें तो हम देखेंगे अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ परफेक्टली केपेबल ऑफ सर्वाइविंग ऑन इट्स ओन. हम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं ओवर द वास्ट पीरियड ऑफ टाइम. So it's like, so this is why we say कि cell is the basic unit of life because it is capable of performing basic functions. Functions like what kind of functions? जैसे कि cell खुद से mobilize कर सकता है, reproduce कर सकता है, it has its own genetic material, खाना ingest कर सकता है, digest कर सकता है, and excrete कर सकता है, survive कर सकता है. So cell is capable of doing that and it is a basic structure जो एक life form के लिए required है. अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये तो मैं इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी कि क्यों हम सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं. बट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो जैसे हमारे ब्रेन सेल्स हैं तो वो इतने डिफ्रेंशिएटेड है, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है इतना कि सेल एज अ यूनिट काम करती है एंड टिश्यूज फॉर्म करती है. लाइक बेसिस क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम का? उसका बेसिस एक वो पर्टिकुलर सेल ही है. लाइक अगर मैं ब्रेन सेल न्यूरॉन को ले लूँ तो इट कांट परफॉर्म फंक्शन ऑफ किडनी सेल्स, इतने डिफ्रेंशिएट हो गए. बट उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम में रहने के लिए हमें जो बेसिक यूनिट चाहिए एज अ यूनिट जो पूरी फंक्शन कर पाए वो सेल ही है. देयरफॉर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट्स रिटन हियर? ओके, तो इस टेक्स्ट में एक्सप्लेन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही बेसिकली करने वाले हैं. मुझे पहले से पता था तो आई explained it to you guys. Well, here is in this section we shall study about all these aspects related to cell. What would be the answer to the question what is cell? Well, a cell is the smallest self-functioning unit found in all living organisms. Yeah, तो आंसर इसमें था कि self functioning unit है. अगर हम कोई भी ऑर्गन सिस्टम उठा ले तो उसका बेसिक सेल्फ फंक्शनिंग यूनिट एक सेल ही होता है. तो सेल को हमने एक बेसिस ले लिया लाइफ का. ठीक है. Cells may exist as independent units of life, as I said, or may form colonies or tissues as in higher plants and animals.
See, I'm so proud of myself. मैंने ये तो सही समझाया. And then surface which have unique functions identified body. Also, the contains genetic material DNA parts to carry out its life functions. Within the cell, also contains genetic material other parts to carry out its life function. Within the cell, and using the cytoplasm, okay, within the cell, DNA. So, my cell is only DNA. The cytoplasm is organized that carry out the cell functions. We should be able to of the cell in a little while from now, okay? And the division of cells having a common covalent form similar that one or more cells in the body consider tissue. Cells have tissues to join the form organ, regular form of function. तो इसमें ये बता रहे हैं कि cells have the ability कि वो aggregate होते हैं and form a tissue, and then that tissue is then differentiated into a particular organ to perform a particular function. फिर जैसे कि मैंने बताया, अगर एक न्यूरॉन है तो फिर वो वही काम करेगा जो उसको डेजिग्नेट किया है जो काम करने के लिए, फिर वो किडनी का फंक्शन नहीं करेगा, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर समझा है. ऐसे ही हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. बहुत लोगों को नहीं पता होता डिवीजन ऑफ लेबर क्या है. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि काम करने के लिए हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि सब इंटीग्रेटेड वे में सब मिलकर काम करें और पूरा काम हो जाए. लाइक हमारी बॉडी इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मैनी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स, राइट. अकेले फंक्शन नहीं कर रही है. उसी क्यों और ये कैसे हो पा रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से ही हो पा रहा है. अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता तो एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते. इसलिए हर सेल को इतना स्पेशलाइज कर दिया प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कि वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है ना कोऑर्डिनेटेड वे विद अदर सेल्स. ओके, दिस वीडियो माइट बी बोरिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. I know that already, but I was kind of reading it and I don't want to read alone because I always need someone to explain it to. So I thought why not explaining it to you guys. अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो देख लेगा, जिसको नहीं होगा तो ठीक है, वो तो क्यों नहीं देखेगा. So interestingly, all the activities of an organism are present in miniature form in each and every cell. हर एक्टिविटी मिनिएचर फॉर्म में होती है लाइफ की. जैसे कि हमारी एक्टिविटीज भी सेलुलर फॉर्म में हो रही है. हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना, एक सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दीज टू स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट सेल थ्योरी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आई गेस. हाँ, इन्हें दिया है आगे. चलो डिस्कवरी ऑफ सेल पे आ जाते हैं. सो डिस्कवरी ऑफ सेल मैं ऐसे बता देती हूँ क्योंकि मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि सेल, जो टर्म सेल है, उसको किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया था आई गेस 1665. यहाँ मुझे याद है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को द टर्म सेल कॉइन किया था. एक्चुअली उन्हें सेल्यूले कहा था उस टर्म को, बट अब हम सेल कहते हैं. उनने एक कॉर्क लिया था, वुडन कॉर्क को. एक्चुअली वो सेल, ऐसा इंटेंशन नहीं था उनका कि मुझे सेल डिस्कवर करना है. वो बस एक वुडन कॉर्क को ना, उसके स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे एंड उनने से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा और उधर कंपार्टमेंट्स बने थे, बट वो डेड सेल थे तो उन्हें उसको सेल्यूले नाम दे दिया. तो दिस इज हाउ ही कॉइंड द टर्म सेल. बट हेयर इज अ ट्विस्ट कि वो सेल डेड था, ठीक है. एक वुडन कॉर्क था, डेड सेल था. तो उनने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी. तो बाद में ऐसा हुआ कि एक्चुअली में एक लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन लेवेनहुक थे आई गेस. हाँ, वही थे जिनने, हाँ यहाँ पे लिखा है Antony van Leeuwenhoek, on the other hand, was the first to observe free cell like bacteria, protozoa, red blood cells, and sperm. You may already be aware that these are single organisms. Okay. तो डेड सेल्स किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. लिविंग सेल एंटनी वॉन लेवेनहुक ने. तो ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पहली चीज़ हमने जो पढ़ी वो था सेल को हम बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है. थर्ड हमने डिस्कवरी ऑफ सेल देखा और फोर्थ अब हम देख रहे हैं सेल थ्योरी. ठीक है, सेल थ्योरी को 2 पॉइंट्स में इन्हें दिया हुआ है. पहला ये कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, इंक्लूडिंग प्लांट्स, सब सेल से ही बने होते हैं या और उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं. ठीक है. नाउ जो सेकंड टेनेट है सेल थ्योरी का, टेनेट एज इन प्रिंसिपल या डॉक्टराइन या बिलीफ कह सकते हैं. जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो कहता है, एक टर्म नहीं, एक फ्रेज है, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इट मीन्स कि
जो भी सेल आता है इट कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज cells divide and new cells come from pre-existing cells. So basically ये कहना चाहते हैं कि life comes from pre-existing life. जो न्यू सेल्स आ रहे हैं वो पुराने सेल से ही आ रहे हैं.